So today we are going to discuss another topic of first chapter. Topic is stoichiometric calculation. So it is also one of the important topic. ये टॉपिक में मेनली हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करना पड़ेगा. हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेगा रिलेटेड टू द केमिकल रिएक्शन. So every chemical phenomena, every chemical process is represented by a particular equation. What that equation is called chemical equation. In a chemical equation, reactant and products are represented by a particular symbol. So every chemical process is represented by a particular equation. That equation is known as chemical equation. Regarding the chemical equation, how can you balance a chemical equation? How many different types of chemical equation you have discussed in class 10 in the first chapter. Name of the chapter is chemical reactions and chemical equations. So every chemical reaction is represented by a particular equation. That equation is called balanced chemical equation. That equation is called chemical equation. So किसी भी chemical reaction को particular एक equation से represent किया जाता है. So a particular reaction, a balanced reaction provides us two types of informations. One is called quantitative information, another is known as qualitative information. That means from a balanced chemical reaction, जब तक एक केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं किया जाता है तब तक केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है. केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है मतलब बोथ साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड में नंबर ऑफ एटॉम्स इक्वल करना है. क्यों नंबर ऑफ एटॉम्स इक्वल करना है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, neither atom is lost nor atom is gained. That means number of atoms remains the same during a chemical reaction. Another statement of the law of conservation of mass during a chemical reaction: neither mass is lost nor mass is gained. Mass remains the constant. A chemical reaction में mass constant रहने के लिए during the reaction, so number of atoms भी during the reaction loss or gain नहीं होना पड़ेगा. So a balanced chemical reaction provides us two types of information. One is known as qualitative information. Qualitative information. Qualitative information. And another one is known as quantitative information. So in any type of a balanced chemical reaction provides us two types of information: qualitative informations, quantitative informations. Let us consider an example of a chemical reaction. Suppose nitrogen gas reacts with hydrogen gas, produces ammonia gas. So this reaction is not balanced. Now we have to balance it. So nitrogen atom in the left side is 2. So यहाँ भी 2 बनाने का हम लोग यहाँ 2 लगाना पड़ेगा. Then hydrogen in the right side becomes 3 into 2 6. तो यहाँ भी हम लोग 3 लगाना पड़ेगा. 3 into 2 6. Now this is the balanced chemical reaction. So what is the qualitative informations for this reaction? Qualitative information for this reaction, qualitative information for this reaction is that nitrogen gas
reacts with hydrogen gas produces ammonia. So this is the qualitative information for this reaction. तो qualitative information मतलब name of the reactant and product, कौन सा reactant react करके कौन सा product produce हो रहा है, what are the name of the reactants and product. That information is called qualitative information. So qualitative information for this reaction is that nitrogen gas reacts with hydrogen gas, produces ammonia. Now what is the quantitative information regarding this reaction? Quantitative information is related to the quantity of the reactant and product. मतलब पर्टिकुलर एक रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन. मतलब क्वांटिटी के बारे में हम लोग मेंशन करना है. सो फॉर दिस रिएक्शन quantitative information for this reaction is, तो अगेन हम लोग रिएक्शन को लिख रहा है टू मेंशन अबाउट द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन फॉर दिस रिएक्शन. सेम रिएक्शन हम लोग फिर दोबारा लिख रहा है. दिस इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन. सो हम लोग पर्टिकुलर एक रिएक्शन के लिए क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस मेंशन कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मोल कंसेप्ट. सो मोल कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर अस. We have already discussed about the mole concept. So mole is the SI unit to measure the amount of a substance. 1 mole of a substance is always containing Avogadro's number of particles. Mole is the basic SI unit to measure the amount of a substance. We have already discussed how can you convert a substance. जब एक substance का weight given होता है, weight को कैसे mole में convert कर सकता है. जब एक सब्सटेंस का वॉल्यूम गिवन होता है, कैसे वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट कर सकता है. जब एक सब्सटेंस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैसे हम लोग मोल में कन्वर्ट कर सकता है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट. और मोल कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई नाउ मोल कॉन्सेप्ट फॉर दिस रिएक्शन. विद द हेल्प ऑफ मोल कॉन्सेप्ट वी कैन डिटरमाइन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन फॉर दिस रिएक्शन. सो नाइट्रोजन का आगे में नंबर कितना है 1. दैट मीन्स 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन. हाइड्रोजन का आगे में नंबर 3. दैट मीन्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. एमोनिया का आगे में नंबर ऑफ मोल्स नंबर 2 है, दैट इज 2. ये जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का आगे में जो नंबर्स होता है, दैट नंबर्स आर कॉल्ड स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट. और कैलकुलेशन इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन. सो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का आगे में जो नंबर्स होता है दैट दे रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. और दैट नंबर ऑल्सो कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, नहीं तो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट. सो अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस केमिकल रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस, अदरवाइज वी हैव नॉट proper quantitative information for a balanced chemical reaction. So according to this reaction, 1 mole nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen, produces 2 moles of ammonia. Number of moles we can convert it into gram, क्योंकि 1 mole of a substance is equal to either gram molecular mass of the substance or equal to gram atomic mass of the substance. Nitrogen, it is a molecular substance, it is a molecule. Nitrogen molecule is containing 2 nitrogen atom. 1 nitrogen atom का atomic mass 14. So nitrogen molecule में 2 nitrogen atom है, तो 2 into 14 कितना ग्राम हो गया 28 ग्राम. So molecular mass of nitrogen is how many 28 gram. That means 1 mole of nitrogen equal to how many gram 28 gram according to mole concept. Now hydrogen molecule is containing 2 hydrogen atom. 1 hydrogen atom का atomic mass 1, तो हाइड्रोजन मोलिकुल का मोलिकुलर मास कितना होगा. मोलिकुल्स का मास को मोलिकुलर मास बोला जाता है.
H2 इट इज़ ए मोलिकुल, 3 बैलेंस करने के लिए लगाया गया। सो H2 क्या है, इट इज़ ए मोलिकुल, इसका मोलिकुलर मास कितना है 2 ग्राम। लेकिन ये हाइड्रोजन मोलिकुल कितना है 3, तो 2 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कितना ग्राम हुआ 6 ग्राम। देन एमोनिया इट इज़ ए मोलिकुल, इनका मोलिकुलर मास निकलना है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया 14, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और 3 हाइड्रोजन है, तो 1 इंटू 3 हो गया। तो 14 प्लस 3 इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम 17 ग्राम। सो मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम 17 ग्राम। तो 1 मोलिकुल का मोलिकुलर मास 17 ग्राम, यहाँ लेकिन 2 है ना, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, मतलब कितना ग्राम हो गया 34 ग्राम। That means 1 mole of ammonia equal to how many gram of ammonia 17 gram. Then 2 moles of ammonia equal to how many gram 2 into 17 34 gram. 1 mole of hydrogen equal to 2 gram. Then 3 moles of hydrogen equal to how many 3 into 2 6 gram. So 1 mole of nitrogen equal to 28 gram. So 28 gram of nitrogen reacts with 6 gram of hydrogen produces 34 gram of ammonia. 28 plus 6 34, product भी 34. So during a chemical reaction mass loss भी नहीं होता है, mass gain भी नहीं होता है, mass remains constant during a chemical reaction. So number of moles को हम लोग number of molecules में convert कर सकता है. Nitrogen is a molecular substance, so 1 mole nitrogen equal to Avogadro's numbers of nitrogen. Avogadro's numbers of molecules of nitrogen. So 1 mole hydrogen equal to Avogadro's number of molecules of hydrogen. यहाँ तो लेकिन 3 moles of hydrogen, तो Avogadro's number को 3 से multiply करना पड़ेगा. Then these numbers of molecules of क्या हो गया hydrogen हो गया. To produces how many molecules of ammonia? 1 mole of ammonia equal to Avogadro's नंबर ऑफ मोलिकुल्स ऑफ एमोनिया. यहाँ तो 2 मोल्स ऑफ एमोनिया है, तो एवोगाड्रोस नंबर को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस नंबर ऑफ मोलिकुल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ दिस नंबर ऑफ मोलिकुल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस दिस नंबर ऑफ मोलिकुल्स ऑफ एमोनिया ड्यूरिंग दिस रिएक्शन. सो फर्स्ट वन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मोल, क्योंकि केमिस्ट्री में mole is the basic unit to measure the amount of the substance. Quantitative information in terms of gram, quantitative information in terms of molecule. We can also write quantitative information in terms of volume, क्योंकि 1 mole of any gas at NTP occupies how many volume 22.4 liter at NTP. वॉल्यूम का बारे में मेंशन करने से NTP लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 mole of a gas is occupying 22.4 liter of volume only at NTP condition. NTP means normal temperature and pressure. Normal temperature is considered as 0 degree Celsius in chemistry and pressure is 1 atmosphere or 1 bar. So 22.4 liter is known as molar volume, because 1 mole of any substance, any gas is occupying how many volume 22.4 liter at NTP. So 1 mole of hydrogen occupies volume 22.4 liter, लेकिन यहाँ 3 mole हाइड्रोजन है, तो 22.4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा at NTP. Produces 2 into 22.4 liter of ammonia at NTP. So this is the quantitative information in terms of volume. So from a balanced chemical reaction we have quantitative information in terms of mole, in terms of gram, in terms of number of molecules. Molecules also we can convert it into atoms, क्योंकि molecules are made up by atoms. So quantitative informations from a balanced chemical reaction we have in terms of mole, in terms of gram, in terms of molecule, in terms of volume, so on. So it is very important concept for you. So from a balanced chemical reaction we have 2 types of information. One is called qualitative information, another one is known as quantitative information. So now we are going to discuss one more subtopic related to the stoichiometric calculation. Topic is limiting reagent and excess reagent. So some chemical reactions are
having two or more than two reactants. In those chemical reaction, two reactants are present. There is one reactant is known as limiting reagent or limiting reactant, and another reactant is known as excess reagent or excess reactant. मतलब reactant को हम लोग reagent को reactant भी बोल सकता है यहाँ. So जिस chemical reaction में two reactants होता है, in that chemical reaction one reactant is known as limiting reactant or reagent and another one is known as excess reagent or reactant. So particular एक chemical reaction में जब दो reactant होगा, एक limiting reactant होगा, another excess reactant होगा. So कौन सा limiting होगा, कौन सा excess होगा? How can you calculate it? How can you determine it? So determine करने के लिए limiting reactant कौन सा है, excess reagent कौन सा है, determine करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? Limiting reactant and excess reactant का definition first of all discuss करना पड़ेगा. So limiting reactants ऐसा reactant है which limits the amount of product produced in a chemical reaction. मतलब एक केमिकल रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, 1 ग्राम प्रोड्यूस होगा, 2 ग्राम प्रोड्यूस होगा, 100 ग्राम प्रोड्यूस होगा, कितना ग्राम रिएक्टेंट प्रोड्यूस होगा, ये डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट का ऊपर में. क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट ही कंप्लीटली कंज्यूम होके प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है. तो लिमिटिंग रिएक्टेंट इज ए दैट रिएक्टेंट which limits the product produced in a chemical reaction and which is completely consumed in a chemical reaction. जो reactant completely consume होके product produce हो जाता है, that reactant is called limiting reactant. और किसी किसी chemical reaction में कभी कभी ऐसा हो जाता है limiting reactant का quantity कमती पड़ जाता है और चाहिए था limiting reactant reaction होने के लिए, लेकिन क्या हुआ, उनका क्वांटिटी कमती पड़ गया. सो समटाइम्स इट्स अमाउंट इज लेस देन द नीडेड अमाउंट. जितना चाहिए उससे जब जिस रिएक्टेंट का क्वांटिटी कमती पड़ जाता है, that reactant is called limiting reactant. So what is the limiting reactant? Limiting reactant limits the product produced in a chemical reaction. That means how many amount of product is produced in a chemical reaction, it depends on limiting reactant. Limiting reactant ऐसा reactant है जिसका quantity completely consume होके product produce होता है. Limiting reactant ऐसा reactant है कभी कभी limiting reactant का quantity कमती पड़ जाता है और चाहिए था reaction होने के लिए. So this is about the limiting reactant. So excess reactant or reagent is a reactant which amount remains excess after the completion of a chemical reaction. So chemical reaction complete होने का बाद जो reactant का quantity ज़्यादा होके रह जाता है, ज़्यादा हो जाता है, that reactant is called excess reactant or excess reagent. That means excess reagent remains excess after the completion of a chemical reaction. So excess reagent का quantity और excess reactant का quantity excess हो जाता है during a reaction, लेकिन limiting reagent का quantity कमती पड़ सकता है during a chemical reaction. So now we are going to discuss a numerical problem related to the excess reagent and limiting reagent. The question is 1 gram of magnesium. This is a question is related to the activity, first activity of your class 10 science book. It was the first activity. Activity was magnesium reborn, burn in oxygen,
produces magnesium oxide. So this question is related to that activity. So 1 gram of magnesium symbol Mg, is burned in a closed container with 0.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. एक कंटेनर में 0.5 ग्राम ऑक्सीजन है, 0.5 ग्राम ऑक्सीजन का साथ 1 ग्राम मैग्नीशियम बर्न कर रहा है. किसी भी सब्सटेंस को बर्न किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब 1 ग्राम मैग्नीशियम 0.5 ग्राम ऑक्सीजन का साथ कंप्लीट कर लेगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, बर्निंग कंप्लीट हो जाएगा, देन रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा. So 1 gram magnesium is burned in a closed container with 0.5 gram of oxygen. Which one is the limiting reactant? Magnesium and oxygen, these are two reactant. ये दोनों reactant से कौन सा limiting reactant होगा, कौन सा limiting reagent होगा? एक limiting reagent होने से another one obviously excess होगा. So calculate the amount of magnesium oxide produced in this reaction. ये रिएक्शन में कितना ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा हम लोग फाइंड आउट करना है. तो इस टाइप का कैलकुलेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करना पड़ेगा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन को लिखना पड़ेगा. सो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इज, बैलेंस केमिकल रिएक्शन को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना पड़ेगा. मैग्नीशियम इट इज़ फाउंड इन सॉलिड स्टेट, बर्न इन ऑक्सीजन इट इज़ फाउंड इन गैसियस स्टेट, प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड इट इज़ फाउंड इन सॉलिड स्टेट एज सॉलिड. तो बैलेंस करने से यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एटम 1 है, ऑक्सीजन एटम 2 है. सो हम 2 बनाने के लिए 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाने से हम लोग यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा. सो अभी मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस रिएक्शन. इसका 1 ग्राम, इसका 0.5 ग्राम का साथ रिएक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. सो कितना ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा फाइंड आउट करना है. दोनों रिएक्टेंट का क्वांटिटी ग्राम में दिया हुआ है. सो कितना ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा हम लोग कैलकुलेट करेगा. सो अकॉर्डिंग टू द मोल कंसेप्ट, 2 moles of magnesium reacts with 1 mole of oxygen, क्योंकि ऑक्सीजन का आगे में नंबर 1 है, produces 1 mole of 2 moles of magnesium oxide. तो मोल को ग्राम में लेना है क्योंकि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का क्वांटिटी क्वेश्चन में ग्राम में दिया हुआ है. सो 1 mole of magnesium इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम. एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24. तो 1 मोल मैग्नीशियम 24 ग्राम, देन 2 मोल कितना होगा, 2 इंटू 24 कितना होगा, 2 इंटू 24, दैट मीन्स 48 ग्राम. 1 मोल ऑक्सीजन इज ए मोलिक्यूल, इसका मोलिकुलर मास 1 मोल ऑक्सीजन इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी ग्राम, 32 ग्राम. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 इंटू 2 कितना हो गया, 32 ग्राम. तो प्रोड्यूसेस हाउ मेनी ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो मैग्नीशियम ऑक्साइड मोलिक्यूल है, इसका मोलिकुलर मास, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, ऑक्सीजन का 16, 10, 1, तो कितना ग्राम हुआ, दिस इज 40 ग्राम. सो 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड इक्वल टू 40 ग्राम, देन 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 इंटू 40 इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन, 80 ग्राम. सो 48 ग्राम मैग्नीशियम reacts with 32 gram of oxygen, produces 80 gram of magnesium oxide. लेकिन क्वेश्चन में ये बोला 1 ग्राम मैग्नीशियम जब 0.5 ग्राम ऑक्सीजन का साथ रिएक्ट करेगा तो कितना ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा हम लोग कैलकुलेट करना है. सो कितना ग्राम प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये दोनों रिएक्टेंट से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा. क्योंकि पर्टिकुलर एक रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है इट डिपेंड्स ऑन द लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट ही कंप्लीटली कंज्यूम होकर क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है. सो इस टाइप का क्वेश्चन होने से लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट नहीं करो बोलने से भी करना पड़ेगा, क्योंकि कितना ग्राम प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है इट डिपेंड्स ऑन द लिमिटिंग रिएक्टेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएक्टेंट. मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन व्हिच वन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करने के लिए जा रहा है.
सो अभी हम लोग मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन ये दोनों से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है फाइंड आउट करना है। सो अभी क्या करना पड़ेगा, हम लोग अकॉर्डिंग टू रिएक्शन हम लोग लिखना पड़ेगा 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ये हम लोग बैलेंस रिएक्शन से लिख रहा है। 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। कितना ग्राम ऑक्सीजन का सर रिएक्ट करता है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन हाउ मेनी ग्राम, 32 ग्राम। यहाँ से ये लाइन से लिखा। और क्वेश्चन में मैग्नीशियम का क्वांटिटी कितना ग्राम दिया हुआ है, 1 ग्राम। देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन हाउ मेनी ग्राम। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इट। 32 इंटू 1 ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड ऑफ द मैथमेटिक्स। 32 ये 1 का साथ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 48। तो ये हम लोगों को ग्राम में आंसर मिलेगा। तो इसको कैलकुलेशन करने से 0.6666 निकल जाएगा। इसको राउंड ऑफ कर देने से अप टू 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट ये लिख सकता है हम लोग 0.67 हम लोग लिख सकता है। सो अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन 1 ग्राम मैग्नीशियम कितना ग्राम ऑक्सीजन का सर रिएक्ट कर सकता है, 0.67 ग्राम। 1 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट कर सकता है हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 0.67 ग्राम। लेकिन क्वेश्चन में मैग्नीशियम का ऑक्सीजन का क्वांटिटी कितना दिया हुआ है, 0.5 ग्राम दिया हुआ है। दिस इज गिवन क्वांटिटी इन द क्वेश्चन। ऑक्सीजन का क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5 ग्राम, लेकिन 1 ग्राम मैग्नीशियम का सर रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन कितना ग्राम सही है, 0.67 ग्राम सही है। सो ऑक्सीजन का क्या हुआ, गिवन क्वांटिटी कमती हो गया नीडेड क्वांटिटी से। नीडेड 0.67, नीडेड ऑक्सीजन का कितना है, 0.67 और गिवन कितना है, 0.5 ग्राम। सो गिवन क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 0.5 ग्राम और इसका नीडेड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन हाउ मेनी, 0.67 ग्राम। नीडेड क्वांटिटी 0.67 ग्राम। देखो गिवन नीडेड है 0.67 ग्राम, गिवन है 0.5। सो ऑक्सीजन का क्वांटिटी कमती पड़ गया ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, और जिस रिएक्टेंट का क्वांटिटी कमती पड़ जाता है दैट रिएक्टेंट इज ऑल्सो नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो व्हाई ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, सो वाई ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि इसका क्वांटिटी और सही है था, गिवन क्वांटिटी कमती पड़ गया, मतलब इसका क्वांटिटी कंप्लीटली कंज्यूम हो गया ड्यूरिंग द रिएक्शन। सो ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो अभी हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना ग्राम प्रोड्यूस होगा, लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन का ऊपर में डिपेंड करेगा। तो ऑक्सीजन से हम लोग अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो कैसे प्रोड्यूस करेगा, फाइंड आउट करने के लिए हम लोग अभी फिर रिएक्शन का पास आना पड़ेगा। तो रिएक्शन देखो, अकॉर्डिंग टू फ्रॉम द बैलेंस केमिकल रिएक्शन वी हैव 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम reacts with 32 gram of oxygen produces 80 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो हम लोग ऑक्सीजन से अभी प्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएक्शन। 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस 80 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे हम लोग अभी लिखना पड़ेगा। So 32 gram of oxygen reacts with magnesium produces 80 gram of मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बैलेंस रिएक्शन से लिख रहा है और क्वेश्चन में ऑक्सीजन का क्वांटिटी दिया हुआ है 0.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम produces magnesium oxide 80 into 0.5, 80 into 0.5. This is called unitary method of the mathematics. 80 into 0.5 divided by 32.
ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा. So this is equal to 1.25 gram of magnesium oxide is produced in the reaction. So this is the solution for this question. So this type of numericals problems are very important for you. So thank you for today.